Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 3, lecture 4. This is summary lecture of chapter 3, adaptation in animals. Today we will revise all the 3 lectures in this summary lecture. Some animals live on land, some in water, some in desert, and some in ice-cold region, and a few on mountains. The natural home of an animal is called the habitat. It is made up of factors like soil, water, temperature, sunlight, and food availability. हर जगह हर एनिमल नहीं मिलते। कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में, कुछ डेजर्ट में, कुछ आइस कोल्ड रीजन में जहां आइस होती है, और कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं। एनिमल्स का जो नेचुरल होम होता है वो हैबिटेट होता है, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। और ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वहां की सॉइल कैसी है, वहां का वाटर कैसा है, टेम्परेचर कैसा रहता है, सनलाइट कैसी है, और फूड उन्हें कैसा अवेलेबल होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एनिमल का एडेप्टेशन कैसे होगा। Some animals live on land, some in water, some in deserts, some in ice-cold region, and a few on mountains. According to their habitats, animals are divided into 5 groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibian, aerial animals, and arboreal animals. Terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. Examples: humans, cows, goats, giraffes and tigers. Animals जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. Animals such as deer, zebra and bison that eat grass are found in forests. They have strong legs and well-developed sense organ for adaptation. कुछ एनिमल्स जैसे जेब्रा, डियर एंड बाइसन ये फॉरेस्ट में मिलते हैं. इनके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे होते हैं, और इनकी सेंस ऑर्गन बहुत डेवलप्ड होते हैं, जिससे ये अपने सराउंडिंग को बहुत क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं. All the animals that live in dry land are known as desert animals. They adapt themselves with low content of water and extreme temperature, like camel. The camel, also known as sheep of desert. It has thick skin. Its hump is reservoir of fat. So when the camel does not get water or food, it can still survive because of the reserved fat in its hump. Desert fox and antelope are also desert animals. कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं. इसकी स्किन बहुत थिक होती है ताकि इसे गर्मी कम लग सके. भाई ये बाय नेचर ही होता है ऐसा. एंड इसका जो हम्प होता है जो इसके पीठ पे, उसमें फैट स्टोर रहता है और वाटर स्टोर रहता है. इसी वजह से ये अगर इसको पानी और खाना काफी दिनों तक नहीं भी मिल पाता तब भी ये सरवाइव कर सकता है. इसमें जो ऊपर इसके हम्प में स्टोरेज होता है फूड का या फैट का, उससे ये अपना काम
बिना खाना या बिना पानी के भी चला सकता है। Animals in cold places. Some animals that live in cold places have thick fur on their skin, and some of them are white in color and merge with their surrounding to escape from their enemies. Polar bear, reindeer, Arctic fox, walrus, seals are some of the examples of animals that live in cold places. कुछ एनिमल बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं एंड हाउ दे अडेप्ट, इनके स्किन पे फर होता है, मतलब बहुत थिक फर होते हैं जिससे इन्हें कम ठंड लग सके, और मोस्टली इनका जो कलर होता है वो वाइट होता है ताकि वो आसपास के सराउंडिंग में मर्ज हो जाए और अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सके। Snakes move or crawl with the help of the scales on their lower bodies. These scales also help them from drying up. स्नेक्स जो होते हैं वो अपने लोअर बॉडी पर जो इनके स्केल्स होते हैं, जो हमें सामने स्लाइड पे दिख रहे हैं, उनकी हेल्प से क्रॉल कर सकते हैं और ये इन्हें ड्राई होने से भी बचाते हैं। Hibernation. Some animals eat a lot of food when it is available in summer and store it as food under their skin, and in winter they just go on the sleep for entire season. This winter sleep is called hibernation. This helps them to conserve their energy till food is available again. Bear, bats, bees, snakes and hummingbirds are the examples. कुछ एनिमल्स जैसे bear, bat, bees, snakes and hummingbirds, ये गर्मियों में समर सीजन में खूब सारा खाना खाते हैं और इसे अपने स्किन के नीचे स्टोर कर लेते हैं, और विंटर में ये इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि तब खाना इन्हें कम अवेलेबल होता है और ये फॉर इंटायर सीजन सो जाते हैं। इस विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं, और ये हाइबरनेशन में जो इनका स्किन के अंदर जो इनका खाना स्टोर होता है वो इनको एनर्जी देता है जब तक कि दोबारा से खाना अवेलेबल नहीं हो जाता। Some animals go into a period of inactivity or estivation during dry and hot climate. Lizard, tortoise, frog, snails are example. कुछ एनिमल हॉट या समर में इनएक्टिव हो जाते हैं और ड्यूरिंग समर ये स्लीप में चले जाते हैं, सो जाते हैं, इसे एस्टिवेशन बोलते हैं। The main difference between hibernation and estivation is hibernation is winter sleep during all winter season, whereas estivation is summer sleep for a shorter period. इन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में डिफरेंस क्या है? हाइबरनेशन में ड्यूरिंग एंटायर सीजन विंटर में एनिमल्स सो जाते हैं, जबकि एस्टिवेशन में समर में ये सोते हैं और बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए ये लोग सोते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स that live in water are called aquatic animals like fish, octopus, seal, etc. Fish breathe through gills. They take dissolved oxygen from water. Fish move with the help of their fins and turtles move with paddle-like feet. Whales and dolphins do not have gills but have lungs to breathe. कुछ एनिमल जो वाटर में रहते हैं उन्हें वाटर एनिमल्स कहते हैं। फिश
ऑक्टोपस, सील। फिश गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती है और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? ये वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसके थ्रू गिल्स से ब्रीदिंग करती है। फिश अपने फिन्स की हेल्प से मूव करती है, जबकि टर्टल पैडल लाइक जो उसके फीट होते हैं उसकी हेल्प से मूव करते हैं। व्हेल एंड डॉल्फिन, ये दोनों ही, इनके गिल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं, इसीलिए बार बार वाटर की सरफेस पर लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग के लिए आती है। Birds like ducks have webbed feet which help them to swim. Birds like herons, spoonbills, stork cranes, egrets and flamingo have long legs which help them to wade in water. कुछ बर्ड्स जैसे डक्स, इनके वेब्ड फीट होते हैं जिनकी हेल्प से ये स्विम कर सकते हैं। और कुछ बर्ड्स जैसे हेरन, स्पूनबिल्स, स्टॉक क्रेन्स, एग्रेट्स एंड फ्लेमिंगो, इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि ये बहुत वेट पानी में वेट कर सके, मीन्स बहुत गहरा पानी नहीं होता उसमें ये आराम से खड़े रह सकते हैं या थोड़ा चल सकते हैं। और इनकी बीक होती है वो बहुत लंबी होती है। The animals that live both on land and water are known as amphibian animals, such as frogs, toads, and salamander. They have lungs to breathe when they are on land, and when they are in water, they breathe through their moist skin. कुछ एनिमल्स जो पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं, इन्हें एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं, लाइक फ्रॉग एंड टोड्स। जब ये पानी में होते हैं तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, और जब ये लैंड पे होते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नाउ एरियल एनिमल्स। एनिमल्स that fly in air are called aerial animals. Birds and some insects spend most of their lifetime in the air. ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स ये एरियल एनिमल्स हैं, ये उड़ सकते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। हमें सबको पता है कि बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं, क्योंकि उनके विंग्स होते हैं। देयर बोन्स आर होलो। इनकी बोन्स जो होती हैं वो होलो होती है, मीन्स अंदर से खोखली होती हैं, हैवी नहीं होती हैं। विच मेक देम लाइट इन वेट। इसी वजह से ये वेट में लाइट होते हैं, ये बहुत हैवी नहीं होते। शेप ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो हेल्प्स देम टू फ्लाई इजिली इन एयर। इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो भी ऐसी होती है जो इन्हें हवा में इजीली उड़ने में हेल्प करती है। आपको स्लाइड में बटरफ्लाई, मॉथ, ये इंसेक्ट्स हैं, ये दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं। एंड स्पैरो एंड क्रो, ये बर्ड्स हैं। तो ये सब क्या है? एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम on trees are called arboreal animals. Examples: monkeys, squirrel, chameleons and some insects. Long limbs and tails of monkeys help them to climb and jump from branch to branch. Chameleon's tongue can be extended more than twice the length of its body. कुछ एनिमल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पर रहते हैं उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, लाइक मंकी एंड स्क्विरल। मंकीज की जो लॉन्ग लिम्स होते हैं और लंबी जो उनकी टेल होती है, ये इन्हें ब्रांच टू ब्रांच जंप करने में और ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करती है। कैमिलियंस की टंग्स जो होती है वो इतनी लंबी जा सकती है जितनी इनकी बॉडी है उसके दुगनी। Now, adaptation for foods. Different animals eat different types of food.
According to their food habits, animals can be classified in some groups. First of all, herbivores. Animals that eat only plants or plant products are called herbivores or plant-eating animals. They have sharp and flat front teeth for cutting the leaves. Rabbits, sheep, goats, horses, pandas are some herbivorous animals. कुछ एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवोर्स बोलते हैं। इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और शार्प होते हैं ताकि वो लीव्स को इजीली कट कर सके। नाउ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस फीड ऑन अदर एनिमल्स फ्लैश। These animals have strong legs, long pointed curved front teeth and strong grinding teeth. Birds of prey such as hawks and eagles have sharp beak to tear the flesh. They also have strong claws called talons to catch and tear their prey. कुछ एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश उनका मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं। इनके लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड और कर्व्ड होते हैं ताकि ये इजीली अपने प्रे को मारकर उन्हें टीयर कर सकें। कुछ बर्ड्स ऑफ प्रे मीन्स शिकारी पक्षी जो होते हैं जैसे हॉक्स एंड ईगल्स, इनकी बीक्स बहुत शार्प होती है ताकि ये फ्लैश को इजीली टीयर कर सकें और इनके क्लॉज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिन्हें टैलेंस बोलते हैं ताकि ये अपने प्रे को इजीली कैच कर सके और उन्हें टीयर कर सके। Omnivores. Animals that eat both plants and animals are called omnivores, like raccoons, pigs, crows, ants, cats and bears. Human beings also are omnivores. कुछ एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल फ्लैश भी खाते हैं उन्हें omnivores बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग भी omnivores है। Parasites. Animals that depend on other animals for their food are called parasites. Examples: leeches, lice, mosquitoes, bugs, roundworms and tapeworms. कुछ एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे लीचेस, लाइस, मॉस्किटोज, बग्स, राउंडवॉर्म एंड टेपवॉर्म्स जिन्हें पेट के कीड़े भी बोलते हैं। दे ऑल आर पैरासाइट्स। दे लिव ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड होस्ट्स। ये सभी दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं जिन्हें होस्ट बोलते हैं। ये जिनकी बॉडी पर रहते हैं उन्हें होस्ट बोलते हैं। एंड सक देयर ब्लड, ये अपने होस्ट की बॉडी से ब्लड सक करते हैं। ऑल पैरासाइट्स कॉज डिजीजेस इन देयर होस्ट। सभी पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं ये उनके लिए डिजीजेस हैं, उनके लिए किसी न किसी बीमारी की वजह है। जैसे लाउस, जो जुएं आपके सिर में हो जाएं अगर तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो ये भी डिजीज है। तो पैरासाइट्स जो हैं ये डिजीजेस की वजह बनती हैं। Scavengers. Animals that feed on dead animals and plants are called scavengers. Vultures, raccoons, hyenas, etc. are scavengers. In nature, many carnivores act as scavengers. कुछ एनिमल्स डेड एनिमल्स और प्लांट को खाते हैं।
इन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। वल्चर, रैकून्स एंड हायनास, ये सभी स्कैवेंजर्स हैं। Carnivores and scavengers both feed on the flesh of other animals. Carnivores hunt their prey, whereas scavengers do not kill other animals. They feed on already dead animals. Carnivores अपने prey को पहले पकड़ता है उसे और फिर उसे मारकर खाता है, जबकि scavengers ऑलरेडी डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। बट इन नेचर मैनी कार्निवर्स एक्ट एज स्कैवेंजर्स। नाउ एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। एवरी एनिमल प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज एंड सराउंडिंग्स। सम एनिमल्स एस्केप फ्रॉम their enemies because of their speed and swiftness. Kangaroos, blackbirds. Rabbit, hares and rats make burrows deep into the soil to escape from enemies such as eagles, owls and cats. अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हर एनिमल अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करता है और इसके लिए वो अपने सराउंडिंग से एडजस्टमेंट करता है। कुछ एनिमल्स बहुत तेज, बहुत स्पीड में भागते हैं अपने आप को अपने एनिमी से बचाने के लिए, लाइक कैंगरूज, ब्लैकबर्ड्स, डियर्स एक्सेट्रा। रैबिट्स, हेयर्स एंड रैट्स ये ग्राउंड में, जमीन में, सॉइल में बहुत गहराई में अपना बरो, अपना बिल बनाते हैं ताकि अपने को अपने एनिमीज लाइक ईगल, आउल और कैट से प्रोटेक्ट कर सके। Whales, elephants and hippopotamus protect themselves from other animals by their big size. They are too big to be eaten by other animals. कुछ एनिमल्स जैसे व्हेल्स, एलिफेंट एंड हिप्पोपोटेमस ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि इन्हें दूसरे एनिमल्स नहीं खा पाते हैं, तो ये अपने साइज की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। Some animals can escape from their enemies because of their color and body shape, so that they can merge with their surroundings. कुछ एनिमल्स अपने आप को अपने बॉडी शेप की वजह से और कलर की वजह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैमलियंस। कैमलियंस अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से पोलर बियर्स भी, ये मोस्टली व्हाइट कलर के होते हैं जो अपने आप को अपने सराउंडिंग में मर्ज कर लेते हैं और अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। Tigers and zebras have stripes on their bodies which help them to merge with their surroundings. Zebras and tigers, इनकी बॉडीज पे स्ट्राइप्स होती हैं जो अपने आप को अपने सराउंडिंग से मर्ज कर लेते हैं और ये अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशली जैसे जहाँ पे बहुत लॉन्ग ग्रासेस या बहुत लॉन्ग प्लांट्स होते हैं। The leaves insect looks like a leaf, while the stick insect looks like the twigs of a plant. कुछ इंसेक्ट जैसे लीफ इंसेक्ट ये लीफ की तरह लगते हैं, इसीलिए ये अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और स्टिक इंसेक्ट ये भी प्लांट की ट्विग की तरह लगते हैं, तो अपने आप को अपनी सराउंडिंग में मर्ज कर लेते हैं और अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पफ फिश कैन एस्केप फ्रॉम शार्क फिश by puffing up like a balloon. This makes the shark spines on its body to stand out, so that the shark cannot eat or swallow the puff fish. Puff fish अपने आप को शार्क फिश से बचाने के लिए
अपनी बॉडी को पफ कर लेती है, बलून की तरह फुला लेती है। इससे शार्क फिश इसको पकड़ नहीं पाती और इसे खा नहीं पाती, क्योंकि ये अपने आप को बलून की तरह फुला लेती है और इससे शार्क फिश इसे पकड़ नहीं पाती। When animals move in large groups to avoid their enemies on unfavorable conditions, it is known as migration. Siberian cranes migrate to India every year. Animals जब बहुत बड़े ग्रुप में अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं। साइबेरियन क्रेन्स हर साल अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर इंडिया में कुछ टाइम के लिए आते हैं और यहाँ रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वापस लौट जाते हैं। So this is all about adaptation in animals. Quick recall. Animals that live on land are called terrestrial animals. Animals that live in water are called aquatic animal. Animals that live both on land and in water are called amphibians. Animals that fly in the air are called aerial animals. Animals that live on trees are called arboreal animals. According to their feeding habits, animals are classified into herbivorous, carnivores, omnivores, parasites, and scavengers. Scavengers feed on dead animals and plants. Animals move from one place to another place in search of food, breeding grounds, and protection. When animals move in large groups to avoid their enemies or unfavorable conditions, it is known as migration. So, this is all about adaptation in animals. Now your chapter is over now. Now this is your today's homework. Learn the following question and answer. आपको ये question and answers learn करने हैं. Question number 1. Why do the eagles and other birds of prey have strong and curved beak? The eagles and other birds of prey have strong and curved beak to tear the flesh of their prey. Eagles और दूसरे शिकारी पक्षियों के कर्व्ड बीक क्यों होते हैं? ताकि वो अपने प्रे को आराम से टीयर कर सके, उनके फ्लैश को इजीली टीयर कर सके. What makes bird fly? Birds have wings to fly. Their bones are hollow, which make them light in weight. Shape of their body also help them to fly easily. बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनकी विंग्स होते हैं, उनकी बोन्स हॉलो होती हैं, वो पेट में बहुत लाइट होते हैं, उनकी बॉडी का शेप भी ऐसा होता है जो इजीली उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है. So you have to learn these questions and answers. Happy learning. Take care of yourself. Bye bye.